Let us start the remaining part of the chapter tissue. We have already discussed in the first video about different kind of animal tissue. Okay, today we are going to discuss about the new and the remaining part of chapter tissue, that is plant tissue. Okay, so let us start. At first we have to divide the different parts of tissue. The first tissue is meristematic tissue. Okay, the plant tissue is further divided into two types. The first one is meristematic tissue and the second one is called permanent tissue. Okay, that's clear. There are two types of plant tissue, meristematic tissue and permanent tissue. Okay. Further, meristematic tissue are divided into two types, primary meristematic tissue and secondary meristematic tissue. Okay, primary and secondary. Then further we divide the primary meristematic tissue as a apical meristeme, intercalary meristeme and lateral meristeme. Okay, and other side the permanent tissue is further divided into again two types, that is simple permanent and complex permanent. Okay, we will discuss what are the basic difference and what are the major difference between these kinds of plant tissue. The simple permanent tissue is further divided into type 1, that is called parenchyma, second collenchyma, and the third one is sclerenchyma. Okay. Now see more division of permanent tissue, and that is the type of complex tissue. Okay. Now the complex tissue is further divided into subgroups, that is one is xylem and another is phloem. Okay. Now the xylem having four more components, that is tracheids, vessel, xylem parenchyma and fourth is xylem fiber. Similarly, phloem also having the four component. The first one is sieve tube, second is companion cell, third is phloem fiber and fourth is phloem parenchyma. Don't worry about this one. Okay, this is the part of complex permanent tissue. Okay, that's clear. At first we know the different type of tissue. Let us start and learn in detail. At first we are going to start learning about the meristematic tissue. Okay, basically these are growing tissue that have ability to grow and divide. Okay, it is made up of living cells. There are some differences between the living cells and non-living cells. Cells that are having the ability of division and formation of the new cell are called living cell. Okay, it means meristematic tissue are made up of living cell that is having the ability to divide and form a new cell. Let us see the main characteristic of the meristematic tissue. Okay, learn slowly, listen all the point
clearly. Actually, the first feature of meristematic tissue is it is very thin. कैसा होता है भाई? Thin होता है. No space, no intercellular space. Okay, and generally vacuoles are absent. Vacuoles क्या होता है भाई? Absent होता है. But there is a dense cytoplasm and a prominent nucleus. इसमें केवल क्या नहीं होता है? वैक्यूल्स नहीं होता. आपको पता है कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं उन सब में क्या है भाई? वैक्यूल्स तो होता है. ठीक है, तो क्या नहीं होता इसमें? स्पेशल हो गया. एंड अब ये जितने भी सेल्स होते हैं जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं उस सबके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं भाई? सही बताया आपने, लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होता है. तो मेन बात क्या याद रखना है? ये किसका बना होता है? थीन सेल्स का बना होता है. नो स्पेस, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है. ओके. नो वैक्यूल्स, भाई इसके पास कोई वैक्यूल्स नहीं होता है. तीन मेन बातें याद रह जाएंगी. अब वैक्यूल्स आर absent. There is no space. It means they are very tightly packed. Okay. It means they do not allow easily substance to enter or exit. Now, the more properties are. अब देख लो, जब वो एक्टिव स्टेट में रहता है, जब वो पूरा फंक्शन अपना कर रहा होता है, अब वो क्या होता है? ये फूड को स्टोर नहीं रखता. डू नॉट स्टोर फूड. डू नॉट स्टोर फूड. ये अपने फूड को स्टोर ही नहीं करता इसके से. और जनरली ये कहा होता है भाई? These cells are generally present in the region where there is a growth requirement. It means tip of root, tip of shoot, या तो रूट के टिप पे और शूट के टिप पे. ओके. नाउ on the basis of origin, we will further divide the meristematic tissue into two types. Okay. At first, primary or pro-meristem. This is the first stage. ये किससे स्टार्ट होता है भाई? मेरिस्टेम ऑफ द एम्ब्रायो. ओके. और ये क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ द सेल डेराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम, जो शुरुआत वाला मेरिस्टेम रहता है. दिस इज नॉट इन क्लास 10, नॉट इन 9th सीबीएसई. ये सीबीएसई बुक में मेंशन नहीं. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू. व्हाट इज दिस वन? परमानेंट टिश्यू. इट मीन्स ये पहला क्या होगा भाई? एक तो ये किसका बना होगा? लिविंग सेल्स का बना होगा. ठीक है. और ये किसका बना होगा भाई? ये हो जाएगा डेड सेल्स का बना होगा. अब ये डेड सेल का मतलब तो समझ गए. डेड सेल मतलब सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन. ओके. अब इसका मतलब क्या होगा? जो प्राइमरी मेरिस्टेम है या प्रो मेरिस्टेम बोलते हैं, एडवांस स्टेज का, उसका मेन काम क्या होता है? द मेन फंक्शन इज ग्रोथ. ओके. और उसके डायमीटर को क्या करता है? जो उसका थिकनेस बढ़ाता है, डायमीटर बढ़ाता है, दैट इज द सेकेंडरी. एक उसको ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा उसके डायमीटर को बढ़ाता है. ठीक है. यानी ये टिप पे होगा और एक होगा पूरे बॉडी पार्ट में. ठीक है. लेट अस सी नाउ अकॉर्डिंग टू
द प्लेस वेयर मेरिस्टेम या मेरिस्मेटिक टिश्यू लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वेयर इट इज जनरली फाउंड. ओके, फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम. अब देखो एपिकल मेरिस्टेम का ये तो पता चल गया भाई, ये किसका बना होगा, ये बना होगा लिविंग सेल का. ठीक है, अब ये कहां पे रहता है भाई, फाउंड ऑन ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट. यानी ये कहां होगा, यहां पे एपिकल मेरिस्टेम. और यहां पे अगर रूट की बात कर दे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम. दो जगह हो गया. ठीक है, ये कहां पे हो गया, ग्रोइंग स्टेम. और ये कहां पे हो गया भाई, ये ग्रो करता है किसको, रूट को ग्रो करता है. एक रूट को ग्रो करता है और दूसरा किसको ग्रो कर रहा है भाई, स्टेम को ग्रो कर रहा है, हाइट बढ़ा रहा है. ठीक है, अब ये कैसे करता है भाई, इसका मतलब जितने भी प्राइमरी ग्रोथ होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, एपिकल मेरिस्टेम. जहां पे बिल्कुल नया पार्ट्स ग्रो करे. ठीक है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ऊपर वाले पार्ट्स और नीचे वाले पार्ट. अब बीच की बात करते हैं. अब सेकंड है आपका इंटरकैलरी. दिस इज कॉल्ड इंटरकैलरी. अब इंटरकैलरी दोनों जगह होगा. अब ये देख लो, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया ये ब्रांच में, और ये जो देख रहे हो ये और ये जो पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड नोड. इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, इसको भी बोलते हैं नोड. अब ये दो नोड के बीच में ये जो यहां पे आपको दिख रहा है, ये वाला है ना, ये क्या है, इंटर कैलरी. ओके, ये क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम. समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आसानी समझने का. ठीक है, तो कहां पे रहेगा भाई, अब ये जब ग्रो कर रहा है तो उसके नीचे रहता है, यानी ये जो रहेगा आपको इंटरकैलरी कहां पे रहता है, लेफ्ट बिहाइंड. किसके पीछे रहता है भाई, एपिकल मेरिस्टेम के पीछे छुपा हुआ रहता है. भाई एपिकल मेरिस्टेम निकल जाएगा, फिर कौन निकलेगा, इंटरकैलरी. अब ये कहां पे रहता है भाई, ये रहता है बेस ऑफ द लीव्स एंड बिटवीन नोड्स, इंटरनोड के रीजन में. मैंने बता दिया ना, ये दोनों जो आप देख रहे हो ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ओके, अब इसका क्या काम है भाई, इसका काम जो होता है ये है इंक्रीज करना. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द लीव्स. ये सबसे मेन उसका फंक्शन है, लीव्स के लेंथ को बढ़ाता. ठीक है, एंड देन जैसे आप कह सकते हो ग्रास के स्टेम को भी बढ़ाता है, बॉम्बू के स्टेम को भी बढ़ाता है, और मिंट के भी स्टेम को बढ़ाता है. यानी स्टेम को ग्रो करता है. किसको ग्रो करता है, इसका मेन काम होता है ग्रो स्टेम. ये इसका काम क्या होता है, ये आपको क्या करता है, टिप पे रहता है. ठीक है, अब ये स्टेम में ही रहेगा, स्टेम को ग्रो करेगा. तो दो तरीके का हो गया, एपिकल और इंटरकैलरी. अब जरा नीचे की बात करते हैं. अब यहां पे देखिए, ये जो आपका थिकनेस नजर आता है, ये एरिया पूरा का पूरा जस्ट एबव द, ये कहां है, एबव द सॉइल. सॉइल के जस्ट ऊपर जो रहता है, दैट इज व्हाट, लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी
मेरिस्टेम। ठीक है, अब यहीं से क्या निकलता है भाई, अब ये क्या करता है, इसका मेन काम होता है जो प्लांट का गर्थ है, ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट, यानी ये क्या कर देता है, ये रूट और स्टेम को क्या करता है, थिकन करता है, किसको, रूट एंड स्टेम। ये रूट और स्टेम को क्या कर लेता है भाई, रूट और स्टेम को ये थिक कर लेता है, क्या करता है, थिक बनाता है, मोटा बना देता है रूट को भी और स्टेम को, जिससे क्या हो जाए, वो अपना फंक्शन आसानी से कर सकता। ठीक है, चलो, यानी ये प्राइमरी नहीं बल्कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सेकेंडरी ग्रोथ। जब उसका हाइट बढ़ जाएगा तो फिर उसका थिकनेस बढ़ाना है, तो थिकनेस बढ़ाने का काम करता है, वो क्या करता है, थिकनेस बढ़ाने का काम करता है। तो अब सीधा सीधा अगर बात करें तो जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू है, मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गया, इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, इसका मेन फंक्शन जो हो गया वो क्या करना भाई, ग्रोथ करना। क्या हो गया, ग्रोथ। मेन फंक्शन जो इसका है ग्रोथ, यानी वो प्लांट को क्या करता है, ग्रोथ करता है, चाहे वो उसकी हाइट बढ़ाना हो चाहे उसका थिकनेस बढ़ाना। दैट्स क्लियर। नाउ लेट अस मूव सेकेंड पार्ट, दैट इज द परमानेंट टिश्यू। अब जैसे मैंने बताया था परमानेंट टिश्यू किसका बना होता है, मेनली ये होता है कौन से सेल का, डेड सेल का बना होता है। यानी डेड सेल की बात करें तो कौन सा सेल, सेल दैट लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, जो क्या करता है भाई, डिवाइड करने की एबिलिटी खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी उसमें क्या नहीं होगा, उसमें डिवीजन भी नहीं होगा और डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब ढेर सारी बार बार डिवाइड और करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब प्लांट के टिश्यू डिवाइड करना बंद कर देते हैं, कैपेबल नहीं होते डिवाइड करने का। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या हो गया भाई। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके हम लोग दो अलग अलग पार्ट करके पढ़ते हैं। एक तो हम लोग बात करेंगे सिंपल परमानेंट और दूसरा हम लोग पार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो भाई इसमें क्या है, जब हम लोग सिंपल परमानेंट की बात करते थे क्यों बोलते हैं सिंपल, इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसका बना होता है, ये बना होता है सेम टाइप ऑफ सेल्स का। ठीक है, क्यों, कि उसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है। यानी ये किसका बना होता है, सिमिलर सेल्स का बना होता है। अब इसको हम लोग सिंपल परमानेंट को दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं कौन सा, इसका प्रोटेक्टिव टिश्यू, और दूसरा बोलते हैं कॉर्क। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू कहाँ बनाएगा भाई, ये बनाएगा आउटर लेयर। ठीक है, अब ये कॉर्क की बात बोलते हैं तो ये क्या बनाएगा भाई, ये भी बनाएगा कौन सा लेयर, आउटर लेयर। अब ये कैसा होगा भाई, ये हार्ड होगा। ये कैसा हो जाएगा, ये जो बात करते हैं ये हो जाएगा क्या चीज, हार्ड। और इसकी बात करते तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, यानी जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होंगे जनरली अगर बात करें तो वो कैसा होगा, आउटर कवरिंग तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में वो उसमें ढेर सारा फ्लेक्सिबिलिटी होगा और वो स्मूथ भी होगा और एंकर तो करेगा ही करेगा, प्रोटेक्शन तो देना ही देना है उसको। ठीक है, कॉर्क क्या होगा, फाइनल होगा, यानी ये जो कॉर्क होगा वो आउटर लेयर बनाएगा। ठीक है, और हार्ड होगा क्योंकि ये किसका बना होता है, ये ऑलमोस्ट डेड सेल का। ये किसका बना होता है, ये बना होता है आपको डेड सेल्स का। इसका मतलब ये किसका बना होगा, ये पक्का बना होगा किसी का, ये बना होगा लिविंग का
अब प्लस कुछ केस में सम इसके पास थोड़े से रहते हैं, कौन सा, डेड सेल। तो अब आप कह सकते हो भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू फर्दर धीरे धीरे क्या बदल जाएगा, कॉर्क या फेलम में बदल जाएगा। लेट अस सी इन डिटेल, आराम से पढ़ने का, घबराने का। अब देख दो, अब हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू को अलग अलग पढ़ते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड द प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ये तो फंक्शन पता चले भाई इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। अब यहां सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये कैसा बनाता है, वो सिंपल, ठीक है, एकदम से कैसा बनाता है, थीन लेयर बनाता है। क्या बनाता है, थीन लेयर। अब ये रहता है कहां पे, ज्यादातर ये लिप्स को कवर करके रहेगा। किसको कवर करके रहेगा, आइदर कवर द लिप्स, कवर द फ्लावर, कवर द स्टेम, ठीक है। अगर आप कोई लिप्स बना ले तो इस तरीके से, है ना, तो ये जो आप देख रहे हो जितनी भी आउटर कवरिंग यहाँ पे बने हुए होंगे, उस सबको आउटर साइड से जो कवर करता है वो कौन सा होगा, एपिडर्मिस, ठीक है। किसका बना होगा ये, 100% ये किसका बना होगा, लिविंग सेल्स का, खूब ग्रो करेगा। बट एक स्पेशल वाटरप्रूफ, इसके पास एक वाटरप्रूफ लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुटी। क्या बोलते हैं हम लोग, कुटी, ठीक है। यानी वो आउटर कवरिंग जिसको नॉर्मली कुटिकल बोलते हैं, वो जिस वैक्सी सब्सटेंस का बना हुआ है, वैक्सी सब्सटेंस का बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुटी, ठीक है। अब ये ज्यादातर किस में होता है, बहुत ठीक होगा, मोटा होगा, जो कहाँ होगा, जेरोफाइट का। जेरोफाइट मतलब कहाँ पे होगा, ये जो ड्राई एरिया में रहता है। कहाँ में रहता है वो, ड्राई एरिया में रहने वाला प्लांट में, ठीक है। उसका ठीक होगा, जो कहाँ रहेगा, ड्राई एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एट सम प्लेसेस। कुछ प्लेसेस में क्या होते हैं, एट सम प्लेसेस दिस एपिडर्मिस टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट, बिकॉज क्यों नहीं रहता है कंटिन्यूअस, क्योंकि वो क्या बना लेता है भाई, स्टोमाटा बना लेता है। किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ O2, CO2 एंड वाटर। ये तीनों के एक्सचेंज के लिए क्या करता है, वहां पे वो स्टोमाटा बना लेता है। लेट अस सी फिगर इन डिटेल। अब जो स्टोमाटा होता है ना, उसको गार्ड करने के लिए एक बीन शेप सेल्स होता है जो स्टोमाटा को गार्ड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। अब ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो गार्ड सेल्स होता है ना, गार्ड सेल्स आर ओनली सेल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट। गार्डी सेल एक ऐसा है जिसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा और सब क्या होता है, कलरलेस होता है। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्योंकि पता है क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है, आपको ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब यहां पर ठीक से देख लो, ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर है, ठीक है, एपिडर्मिस टिश्यू का। अब ये बाहर से जो आप देख रहे हो ना एक लेयर बना हुआ है, इसके ऊपर देख लो, ये वैक्सी कोटिंग रहता है, देखो, है ना, कोटिकल बोलते हैं उसको। बीच में ये लेयर बना हुआ रहता है, जगह खाली रहता है, जो उसको क्या बना देता है, स्पॉन्जी बना देता है, फ्लेक्सिबल बना के रखता है, ठीक है। अब ये बाहर वाला लेयर है मेसोफिल, ठीक है। ये भी देख लो, यहां पर भी कोटिकल नजर आ रहा है। और ये देख लो, दिस इज कॉल्ड स्टोमाटा। ये गैप क्या है, ये स्टोमाटा है, ठीक है। अब इस स्टोमाटा को गार्ड करने के लिए यहां पर क्या होता है भाई, ये दो अलग अलग कौन सा सेल लगे हुए हैं, गार्ड सेल से लगे,
ठीक है, कंफर्म। तो पता चल गया भाई गार्ड सेल्स होता है इसके पास। अब देख लो यहाँ पे जो शब्द दिख रहा है, ये कलर जो यहाँ पे दिख रहा है, एक एक सेल है, 1 2 3 4 अलग अलग सेल्स है। अब देखो न्यूक्लियस बिल्कुल कहाँ होता है, साइड में होता है, ठीक है। इसके पास वैक्यूल्स होता है, जैसा हमेशा देखते हो इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ओके। और क्या है, साइटोप्लाज्म है और सेल वॉल है। दिस इज द ऑल पार्ट्स of the cell that contain, okay. Now let us see the different function of the epidermis tissue. epidermis tissue की कौन कौन फंक्शन, ये तो पता चल गया भाई। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट को किससे, ड्राइनेस होने से, ड्राई होने नहीं देता है, और इन्फेक्शन से बचाता है। और ये जो उसके पास क्यूटिकल होता है, कैसा होता है ये वैक्सी लेयर होता है। ये वैक्सी लेयर का काम क्या करता है, ये रिड्यूस करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जिससे वो आसानी से ड्राई नहीं हो पाता है। एंड अगर वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है, और इवापोरेशन ऑफ वाटर कंट्रोल, दैट प्रिवेंट द विल्टिंग, that prevent the wilting of leaves, ठीक है। और एक तो पता चल ही गया, जो स्टोमाटा के पास होता है उसका काम क्या होता है, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। और भी पता है, ट्रांसपायरेशन आपको पता है, लॉस ऑफ वाटर। क्या मतलब इसका हुआ, ट्रांसपायरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वेपर। किसके रूप में भाई, वेपर के रूप में इसको हेल्प करता है। तो दैट द मेन फंक्शन इज आइदर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम बीइंग ड्राई एंड इन्फेक्शन, एंड कंट्रोल द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, evaporation of the water, and thus prevent wilting. Also allow exchange of gases. That's all. Okay. Now let us move the cork. This is also a type of epidermis cell. अब आपको पता है कि जब कोई रूट स्ट्रीम जो प्लांट का होता है, जो ओल्ड होने लगता है, जब प्लांट ओल्ड हो जाता है, तो वो किसमें बदल जाता है, वो टिश्यू बदल जाता है किसमें, कॉर्क सेल में। किसमें बदल जाता है, कॉर्क सेल में। इसका मतलब कॉर्क सेल किसका बना होता है, ये मेनली बना होगा कौन से सेल का, ये बना होगा डेड सेल का, क्योंकि दिस सेल आर नाउ नॉट कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग अगेन। ओके, अब ये तो पता चली गया इसके पास क्या होगा, थिक वॉल होगा, और ये तो पहले से है क्योंकि उसके पास कोई स्पेस नहीं होगा, यानी डेड सेल, थिक वॉल एंड टाइटली पैक्ड। ओके, और ये किसका बना होता है, अब देख लो यहां पे, अब थोड़ा सा अंतर बता देते। वहां तो आपने कुटिकल देख लिया था, अब यहां पे इसके सेल वॉल में, दिस सेल वॉल इन द कॉर्क हैव डिपॉजिट ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, दिस वैक्सी सब्सटेंस इज कॉल्ड सुबेरिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अब ये पता चल गया एपिडर्मिस में कौन सा होता था, कुटिकल, यहां क्या होता है, सुबेरिन। अब इसको ये पूरा पूरा क्या बना देता है, इम्परमिएबल। द सेल ऑफ कॉर्क बिकेम इम्परमिएबल टू द वाटर एंड गैसेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। अब सुबेरिन इसको क्या बना देता है, प्रिवेंट एक्सचेंज, एक्सचेंज को बिल्कुल रोक देता है, ना तो कुछ अंदर आ सकता है ना तो कुछ बाहर जा सकता है, ठीक है, यानी बिल्कुल ये हार्ड बना देता है। अब इसके पास और क्या नहीं होगा भाई, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है भाई, वेस्ट पड़ा हुआ रहता है, रेजिन और रेजिन और टेनिन्स, ये फील्ड रहता है प्रोटोप्लाज्म के
जगह पे, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म तो उसके अंदर होता ही नहीं था। सुवेरिन याद रहेगा मेन फंक्शन, सुवेरिन क्या बना देता है उसको, इम्परमिएबल, याद रहेगा। कुटिकल क्या बना देता है, परमिएबल, और सुवेरिन का क्या फंक्शन है भाई, इसको क्या बनाता है, इम्परमिएबल। एकदम याद रखना आपको। ये भी वैक्सी होता है, पता है, ये भी वैक्सी सब्सटेंस है, और ये भी कैसा सब्सटेंस है, वैक्सी है। ये किस में रहता है, ये रहता है कॉर्क में, और ये किस में रहता है, के अंदर। कंफर्म? ओके, लेट अस मूव नाउ द फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्क सेल इज जस्ट प्रोटेक्शन, full protection. Okay, what type of protection? From the dryness, from the infection, as usual as epidermis, and mechanical injuries. क्या करता है, मैकेनिकल, बाहर से उसको इंजरीज नहीं होने देता है। ये पता चल गया भाई। अब ये कॉर्क का काम हम लोग अपने घर पे करते हैं, ये यूज आप लोग देखे होंगे अपने घर पे कॉर्क का काम करते हैं। दिस इज नॉट इन 9th क्लास, ये क्लास 9th में नहीं पढ़ना है। आपको पता है क्या पढ़ना है इन चीजों को, कॉमर्शियली हमारे लिए बहुत अवेलेबल है, हम घर में सामान बनाते हैं, इसको फ्लोर्स में भी उसका यूज करते हैं। स्पोर्ट्स का गुड्स, बैट तो आपने खेला होगा, उसका भी बनाते हैं। टेबल टेनिस, शटलकॉक, वुडन पैडल, साइकिल का वुडन पैडल भी बनता है। ये सब आपका काम होगा किसका, कॉर्क का। ओके, नाउ दिस इज द टाइम टू नो अबाउट द सपोर्टिंग टिश्यू। देयर आर 3 टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, दैट इज पेरिकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ओके, अब देख लो, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि नहीं, दोनों में देख लीजिए आप। ठीक है, यहां पे देखो सेल वॉल नजर आएगा स्पेशली। ठीक है, अब यहां पे इसका सेल वॉल स्पेशल, इसके पास एक अलग सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिग्निन, जो उसके कॉर्नर को हार्ड करता है। चलो देखते हैं डिटेल में। पहला पैरेन्काइमा, इसका मेन फंक्शन क्या हो गया भाई, इसका मेन फंक्शन हो गया किसको स्टोर करना, फूड और वाटर को। ठीक है, ये ज्यादातर किस में होता है, वैसे प्लांट में होता है जिसमें क्या होता है भाई, फ्लावर और सीड्स नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके पास फ्लावर और सीड्स एब्सेंट होते हैं, जिसको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है क्या चीज, फ्लावर और सीड्स, ये कैपेबल ही नहीं होते। तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। तो वैसे में ये ज्यादातर रहता है। ठीक है, चलो इसके वाल कैसे हो जाएंगे भाई, 3 वाल होगा। शेप कैसा होगा, आइदर ये ओवल होगा और स्फेरिकल। यानी जो सेल्स का कैटेगरी की बात करें तो सेल कैसा होगा भाई, इसके अंदर जो सेल्स होगा वो थिक वाल वाले होंगे। ठीक है, अब सेल वाल मेनली किसका होना, जैसे पता है सेल वाल मेनली बना होता है किसका, सेलुलोज का, जो सबका होता है। थोड़ा सा इसमें फाइबर होता है जिसको पैक्टिन फाइबर बोलते हैं। और ये पैक्टिन फाइबर स्पेशली कौन सा है, सोलुबल फाइबर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्रूट्स खाते हैं ना, और वेजिटेबल खाते हैं। आपने मैंगो खाया होगा तो मैंगो के अंदर जो रहता है ना, जिसका जूस बना के खाते हैं हम लोग। अब अच्छी बात है क्या, इसके पास बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फॉर स्टोरिंग द फूड एंड वाटर स्टोरेज। दिख रहे कितना बड़ा बड़ा दिख रहा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा। प्राइमरी फंक्शन पता चल गया। ठीक है, दूसरा क्या करता है, स्वेलिंग करता है। क्या करता है, स्वेल अप कर देता है। ये सेल को क्या करता है, स्वेल अप कर देता है, जिससे उसमें फूड का स्टोरेज ज्यादा हो सके। ठीक है, तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या हो गया भाई, स्टोरेज ऑफ द फूड एंड वाटर। नाउ इन सम प्लेसेस पैरेन्काइमा हैविंग द स्पेशल
स्पेशल पैरेनकाइमा। अब देख लो, इसका बहुत बार ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को भी स्टोर करता है। अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियोब्लास्ट। क्या करता है ये? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर करता है। ठीक है, अब स्पेशल में आपने एक तो देख लिया है स्पेशल। दूसरी स्पेशल की बात करें, जनरली अगर हम लोग देखते हैं तो जनरली पैरेनकाइमा में क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल बिल्कुल ही नहीं होता है। पैरेनकाइमा का काम होता है स्टोर करना, उसको क्लोरोफिल से मतलब नहीं, क्योंकि वो खाना बनाता नहीं है। बट अगर कोई पैरेनकाइमा के पास क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, इसका मतलब वो किसमें हेल्प करता है भाई? फोटो एक्सेप्शनल की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। यानी ऐसा पैरेनकाइमा जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेनकाइमा। ठीक है, अब देख लो, कुछ ऐसा पैरेनकाइमा है जिसके बीच में क्या रहता है? एयर स्पेस रहता है। अब पैरेनकाइमा दैट हैव एयर स्पेस टू प्रोवाइड द buoyancy, हेल्प इन फ्लोटिंग। किसमें काम करता है? फ्लोट करने में। तो उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे हम लोग एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। तो दो तरह का हो गया, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। एंड एक स्पेशल हमने बोलिया आइडियोब्लास्ट। तो जनरली क्लास 9th में आप क्या पढ़ोगे? आपको क्लास 9th में पढ़ना है कौन सा? याद रखना, क्लास 9th में देयर आर टू टाइप ऑफ पैरेनकाइमा, आइदर क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। ओके, और क्या काम करता है भाई? क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और एरेनकाइमा क्या होता है? ब्यूएंसी प्रोवाइड करता है, जिससे वो प्लांट आसानी से वाटर पे फ्लोट कर पाता है। नाउ लास्ट वन, अब ये है कॉलेनकाइमा। अब इसका मेन काम क्या होगा भाई? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। अगर ये नहीं रहेगा ना तो जो प्लांट के पार्ट्स होंगे ना वो टूट जाएंगे। जो छोटे छोटे पेड़ देख रहे हो, ठीक है, ये कहां रहता है? केवल छोटे प्लांट में। आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, उसके पास रहता है। ठीक है, कहां कहां पे रहता है? ये पर्जन। इसका मेन काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी देना, जिससे क्या हो गया? इजिली वो बेंड कर सके और वो टूट नहीं पाए। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये कॉलेनकाइमा का जो कॉर्नर होता है, ठीक है, कॉलेनकाइमा का जो सेल बनाने वाले जो सेल होते हैं कॉलेनकाइमा के, ठीक है, उसके कॉर्नर थिकन होते हैं, थिकन कॉर्नर। अब ये क्यों होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन। मैंने बताया था, आम खाते हो तो अंदर में क्या होता है? उसके गुद्दा जो होता है उसको बोलते हैं पैक्टिन। याद रहेगा, क्लोरेनकाइमा के जो वाल होता है उसको थिकन करने के लिए जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है भाई? ये होता है सेलुलोज। तो पता ही है सेलुलोज सब में होता है, और साथ में क्या है? पैक्टिन। याद रहेगा, सुबेरिन वगैरह नहीं बोलना है। ओके, चल नाउ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, कॉलेनकाइमा आपने पढ़ लिया। एंड थर्ड जो है वो स्क्लेरेनकाइमा। फर्स्ट का काम आपने देख लिया, स्टोरेज करना मेनली हो गया। सेकंड का काम आपने क्या दिया? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और थर्ड का काम क्या है? थर्ड का काम है सबसे उस प्लांट को हार्ड बना देना, यानी स्ट्रेंथ कर देना। ठीक है, सबसे ज्यादा थिक वाल होता है इसी का। और क्यों होता है? क्योंकि इसके पास लिग्नीन होता है। क्या होता है? लिग्नीन होता है। ये लिग्नीन उसके, ये जो कॉर्नर देख रहे हो साइड साइड में ना, यहाँ पे क्या है? ये है लिग्नीन। ओके, जो उसको क्या बनाता है? थीक बनाता है। एक और स्पेशल चीज, थीक बनाता है। और लिग्नीन का दूसरा काम होता है, उसको क्या बनाता है? वाटर प्रूफ बनाता है। देखो,
स्ट्रेंथ भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। इसका काम क्या हो गया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, पूरा हार्ड बना देना जिससे बाहर वाले उसके ऊपर इफेक्ट कर सके। अब स्पेशली पहचानोगे कैसे, स्क्लेरेनकाइमा को पहचानने का आपका तरीका है कि इसके पास ये जो दिख रहा है ना, आप अगर यहाँ पे देखते हो तो ये नजर आता है, ये क्या है, पिट, ठीक है। और ये जो यहाँ पे कवर दिख रहा है आपको स्पेशल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। अब देखो पिट क्या है, ये है थीन पोर्शन ऑफ द सेल वॉल, जो पतला सा पोर्शन होता है, ठीक है। अब ये किसके लिए होता है भाई, ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है। अब ल्यूमेन क्या है, जब एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होगा तो भाई उसको रखने के लिए कोई तो कैविटी चाहिए। अब ये कैविटी है जो क्या स्टोर करता है, लिग्निन को स्टोर करके रखता है। यानी ये ल्यूमेन कौन स्टोर करता है, ये स्टोर्ड होता है कहां पे, ये स्टोर करता है क्या चीज, लिग्निन। क्या स्टोर करता है भाई, ये लिग्निन स्टोर करता है, कंफर्म। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला तो आपका कौन सा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब उसमें भी देख सकते हो दो टाइप का हो गया, आपको ये आपके क्लास 9th में नहीं पढ़ना है। चलो अब स्क्लेरेनकाइमा फाइबर का देख लो एग्जाम्पल भाई। अब ये जो आप देख रहे हो नारियल का बाहर वाला पोर्शन हार्ड, ये है स्क्लेरेनकाइमा। अखरोट और बादाम खाए होगे, उसके भी बाहर का जो हार्ड कवरिंग होता है वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। अब इससे तो हमारा पता ही, आप लोग क्या क्या मिलते हैं भाई, इसे जूट लेते हैं, ये जो क्वाइड आता है ना, इसका तो ढेर सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, रोप में कर सकते हो, मैट बनाने में कर सकते हो, टेक्सटाइल फाइबर में भी कर सकते हो। तो ये इसके यूजेज हो गए, किसके, स्क्लेरेनकाइमा के। कुछ हमने आपके सामने लेके आया तीनों का डिफरेंस, ठीक है। एक एक करके आप इसको पढ़ोगे और आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा डिफरेंस हो गया किसमें, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ओके, अब बताते हैं सबसे लास्ट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये क्या होता है, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इससे पहले आपने देखा था कुछ सिंपल परमानेंट सिर्फ एक टाइप का बना हुआ था, और ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का बना होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, किसको, फूड और वाटर को। अब ये कितने टाइप का होगा भाई, दो टाइप का होगा, एक तो जाइलम होगा, दूसरा क्या होगा, फ्लोएम होगा। और जाइलम और फ्लोएम को दोनों को एक साथ अगर मिला दे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्कुलर बंडल। यानी ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फूड और वाटर को, ठीक है। और जाइलम का वॉल कैसा होगा, थिक होगा, और किस स्ट्रक्चर के रूप में आता है भाई, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। किसके फॉर्म में रहता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ये आप देख रहे होगे। पिट तो होगा ही होगा, आपको पता ही। अब इसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है वेसल, दूसरा पार्ट होता है ट्रैकिड्स, तीसरा पार्ट होता है जाइलम, और चौथा पार्ट होता है, सॉरी, पहला पार्ट हो गया कौन सा, ट्रैकिड्स, दूसरा पार्ट हो गया वेसल, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, जाइलम, पैरेन्काइमा, और बीच में होता है क्या चीज, फाइबर। देखते हैं डिटेल में क्या क्या होता है इसके पास। पहला कौन सा हो गया, ट्रैकिड्स। ये किसका बना होता है भाई, डेड सेल का बना होता है। इसका मेन फंक्शन भी वही होता है, ये वाटर और मिनरल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ज्यादातर किसमें होता है, वैसा जिसके पास फ्लावर नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म मींस दोज फ्लावर दैट डू नॉट हैव, दोज प्लांट्स हैविंग नो फ्लावर, जिनके पास फ्लावर नहीं लगते, ठीक है। अब देख लो, अब सब में नहीं होता है, जनरली ट्रैकिड्स होगा, लेकिन जब और ग्रो कर जाता है, एडवांस में अगर बात कर ले, जब अगर ट्रैकिड्स से काम नहीं चलता है तो उसके पास क्या होते हैं भाई, वेसल्स होते हैं। अब वैसे जिसके पास क्या होता है, जिसकी सीड्स हो जाती है, यानी यानी सबसे पहले क्या बनता है, ट्रैकिड्स, और ट्रैकिड्स से ज्यादा जोड़ी बनता है तो ट्रैकिड्स का बड़ा बन जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड वेसल्स, ठीक है। ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही है, प्लेस्ड वन ओवर द अनदर। और क्या बनाता है, ये बनाता है कंटिन्यूअस चैनल, जिससे कि बहुत ज्यादा, यानी जब ग्रो करता है प्लांट, एडवांस प्लांट है तो भाई एडवांस प्लांट के बाद ट्रैकिड से काम नहीं चलेगा, उसके लिए स्पेशल हो गया वेसल की बात करते हैं। ओके,
चलिए, देयर आर सम डिफरेंसेस इन द, अब देख लो, लार्जर इन डायमीटर होता है भाई कौन, वेसल, जबकि ये स्मॉलर इन डायमीटर हो गया। अब इसके वाल कैसे होते हैं, थिनर होते हैं, और इसका कैसा होगा, थिकर होता है। कुछ डिफरेंस आपको पता कर देना है, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग होते हैं, वन ओवर द अनदर होते हैं, और ये किस में होते हैं भाई, रॉज में होते हैं। ये ज्यादातर एंजियोस्पर्म में होता है, और ये क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, और फर्म में होता है। कुछ डिफरेंसेस आपको पता करना है। अब इसके पास बहुत ज्यादा क्या होगा, पिट्स होगा, बट इसके पास बहुत कम पिट्स होता है। पिट्स तो मैंने बताया ही है आपको, जो एक्सचेंज के लिए जरूरी होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हायर एफिशिएंसी इन वाटर कंडक्शन, और इसका क्या होता है, लोअर एफिशिएंसी इन वाटर कंडक्शन। मैंने बताया है कि जो जो प्लांट हायर होगा तो ट्रैकेट से काम नहीं चलेगा, उसके पास स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज कॉल्ड वेसल। चलो, थर्ड पार्ट क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। अब जाइलम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा। अब इसका मेन काम होता है क्या, स्टोर करना। इसका मेन काम होता है स्टोर करना, क्या चीज, फूड स्टोर करता है। ओनली फंक्शन इज टू स्टोर द फूड, नॉट एनी अदर फंक्शन। नाउ दिस इज टाइम टू गिव द प्रोटेक्शन। तो इसके लिए इसके पास होता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या इसको बोलते हैं हम लोग जाइलम फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जाइलम फाइबर, ठीक है। इसका सेम काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जितने भी इसके अंदर आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, उस सभी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब यहां पे बात कर लेना, ये जो आपको देख रहा है जाइलम, ये जो देख रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, ये किसका बना होता है, ये बना होता है लिविंग सेल्स का। किसका बना होता है, लिविंग सेल का, और सब डेड सेल का बना होता है। प्लांट के अंदर में आप पता है हर ईयर एक एनुअल रिंग प्रेजेंट होता है, हर साल एक नया रिंग बनता है। दैट रिंग हेल्प अस टू डिटरमाइन द एज ऑफ द प्लांट। प्लांट के एज को पता करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा भाई, एनुअल रिंग देखना पड़ेगा, जो कहां होगा, ट्रंक ऑफ द ट्री में रहेगा। इसको हम लोग जाइलम रिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जाइलम रिंग्स बोलते हैं। याद रखना, फंक्शन हो गया, मेनली फंक्शन पता चल गया चारों के पार्ट्स के। चलो, फ्लोएम का भी पार्ट बात करते हैं। फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स हो गए, ओके। कौन कौन सा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स सेकेंड, फिर पैरेन्काइमा थर्ड, और फिर से अगेन इसमें क्या हो जाएगा, वही फाइबर तो आना ही आना है। क्या हो इसके पास हो जाएगा भाई, फाइबर। ये टोटल इसके भी कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट। लेट अस सी द थिंग्स। अब देखो, सबसे पहला सीव ट्यूब्स। अब ये भी कैसा होगा भाई, ट्यूब्स की तरह होगा, ठीक है। इसके पास भी कैसा है, थीन वाल है। प्लेस्ड कैसे है, 1 इंटू एक इंच से दूसरे इंच पे मिला हुआ है। और कैसा होता है, परफोरेटेड होता है, क्योंकि इसके पास ढेर सारा क्या होता है, पोर्स होता है, जिससे एक्सचेंज हो सके। अब एक स्पेशल पास होता है कि जो सीव ट्यूब बना होता है ना, जब मैच्योर होता है सीव ट्यूब, यानी जब ग्रो करना शुरू होता है, तो उसमें से न्यूक्लियस खत्म ही हो जाता है। साइटोप्लाज्म रहता है, लेकिन क्या खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस बिल्कुल ही नहीं नजर आता है, ठीक है। अब सीव ट्यूब्स के पास खुद का स्टोरेज होता है, किसका, प्रोटीन का। सीव ट्यूब खुद स्टोर के रखता है प्रोटीन को, जो उसको हेल्प करता है किसमें, ग्रोथ में एंड रिपेयर। खुद को रिपेयर के लिए हमेशा प्रोटीन स्टोर करता है, ओके। सेकंड, कंपेनियन सेल। अब देख लो, इसका भी काम फूड स्टोर, फूड को कंडक्ट करना, पीछे वाले का काम फूड के स्टोर करना। अब ये जो सीव ट्यूब पढ़ रहे हो, वो भी फूड स्टोर कर रहा है, फूड को कंडक्ट कर रहा है, और कंपेनियन सेल भी कर रहा है। अब इसको हम लोग सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का ओरिजिन कहां होगा, एक ही सेल से होता है, ठीक है। अब इसके पास भी क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं।
अब पीछे वाले के बाद न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है बाद में जाके, लेकिन इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता है। इसका भी काम क्या हो गया भाई, ट्रांसपोर्ट करना फूड। अब ये फाइबर पता है मैकेनिकल सपोर्ट देगा, सेम टिप पैरेंट में क्या करेगा, ये करेगा स्टोर फूड, ये सेम फंक्शन हो जाता है। अब बात आ गया फूड कंडक्टर करने के लिए भी दो, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स, ठीक है, दो अलग अलग होते हैं। चलो थोड़ा सा और बता देते हैं आपके बारे में। अब है कि व्हाट आर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब देखो सीव ट्यूब्स जिस सेल का बना होता है उसके पास क्या नहीं होता है, राइबोसोम्स नहीं होता है। अब इसलिए उसको साथ में क्या चाहिए, कंपेनियन सेल चाहिए, क्योंकि भाई उसके पास तो राइबोसोम्स नहीं है। अगर राइबोसोम्स नहीं है तो क्या नहीं होगा, याद होगा, प्रोटीन। भाई प्रोटीन सिंथेसाइज करता है क्या चीज, राइबोसोम्स, तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो भाई काम कैसे करेगा, चाहिए कि नहीं चाहिए, ओके। सेकंड, कंपेनियन सेल प्रोवाइड सीव ट्यूब्स मेंबर विथ प्रोटीन, वही मैंने बोला। अब प्रोटीन नहीं मिलेगा भाई तो एनर्जी कहां से आएगा, एनर्जी नहीं आएगा तो फिर वर्क कैसे करेगा, तो इसलिए कंपेनियन सेल चाहिए, क्योंकि कंपेनियन सेल उसको क्या प्रोवाइड करता है, सीव ट्यूब्स को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ओके। अब छोटा सा और बात जान लो भाई, अगर सीव ट्यूब्स की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ये शॉर्टर होता है लेकिन वाइडर होता है, यानी इसके पास लार्ज एरिया होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये मेनली किस में होता है, बताया जिम्नोस्पर्म में। और कंपेनियन सेल्स क्या होता है, स्पेशली ये फ्लावरिंग प्लांट एंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट एंड कंडक्शन, यानी ये सिर्फ सपोर्ट करता है। कंपेनियन सेल मेनली क्या करता है, सीव ट्यूब्स करता है, ओके। देयर आर आल्सो सम डिफरेंसेस गिवन हियर, यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी एंड ट्राई टू लर्न and revise